Hi friends, this is Vasundhara from Capstone IAS Learning. We proudly launch the CSAT course for you guys. This video consists of reading comprehension. We are going to cover the basics, do's and don'ts, tones and types of RCs. Please subscribe to our channel for more relevant content. Let's get straight into the importance of RCs. So 100% of almost your verbal section is going to be reading comprehensions. So that is one area you can't ignore for verbal especially. It's a qualifying exam, but it is really very important. What exactly is a reading comprehension? It is the way of understanding of what is being read. So however you read any information and how you comprehend and understand it, the deeper meanings, do you get them or not? So the examiner wants to test these skills. How do they do it? वो आपको diverse topics से देंगे जो भी आर्टिकल्स होंगे किसी भी एडिटोरियल से हो सकता है या किसी भी मैगजीन का वो आर्टिकल हो सकता है हेवी जार्गन या वोकैबुलरी यूज करके वो टेस्ट करेंगे कि आपकी वर्ड्स की और कॉन्टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग क्या है ये सब आपको टाइम लिमिट के अंदर करना है सो विद इन टाइम कंस्ट्रेंट्स एंड एक्यूरेटली यू हैव टू सॉल्व आरसीज एंड इट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क we'll learn how to do it right away. So the basic do's and don'ts of this are never emphasize on trivialities. Don't get lost in examples. Overall flow और structure का ध्यान रखिए. Examples में मत lost हो जाइए please. Don't memorize. You can always reread. रट्टा लगाने की facts को या specific points को कोई ज़रूरत नहीं है. हमेशा passage को पहले ना पढ़ें, questions पढ़ें. Options पे ध्यान देने की first reading में ज़रूरत नहीं है. Questions देखिए, passage देखिए, keywords ढूंढिए. If you find any keyword that matches the question, you go back to the question and mark the answer. Then continue reading the passage. And any facts that you see, just star mark them. You can always reread if you feel like. But don't regressively read the passage again and again. बार बार पढ़ने का उसको कोई फायदा नहीं है. आप सिर्फ अपना टाइम खराब करेंगे. 2 बार से ज्यादा बिल्कुल भी उसको नहीं पढ़ना है और पहली बार भी क्वेश्चंस पढ़ने के बाद पढ़ना है. Let's move on to the next point. Don't emphasize on vocabulary skills for RCs. Vocabulary is important, not to forget, but don't overemphasize. अगर आपकी vocabulary weak है, don't lose hope and don't get stuck. अगर आपको जिस्ट समझ में आ रही है समरी समझ में आ रही है आगे बढ़िए एक वर्ड पे स्टक मत हो जाइए डोंट स्पेंड टाइम ऑन आरसीज दैट यू कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड एट फर्स्ट जो आपको एक बारी में या 2 बारी में नहीं समझ आई है उस पे प्लीज डोंट स्टिक अराउंड गो बैक टू द नेक्स्ट वन यू कैन कम बैक टू दिस इट्स not a difficult task to do. Don't think the correct option will be from outside the passage. Passage के बाहर से कुछ नहीं होगा. Everything is within the realm of the passage. You have to identify कि inferences उसी given information से क्या हो सकती हैं. Please don't assume anything on your prior knowledge. And don't rely on trigger words. Trigger words are the worst. They will confuse you. Things like but, however, they change ideas in between. But आपको ध्यान रखना है कि सेंट्रल आइडिया और सेंट्रल थीम से नहीं भटकना. ये बट और however आपको कंफ्यूज करने की बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे. The next one is make notes. You can always make mental notes or you can go with flowcharts. The next is preempt questions. Preempt means try to work with your sixth sense. Identify the possible questions. ध्यान दीजिए कि एग्जामिनर अगर पूछना चाहे अगर वो सामने बैठा हो तो वो क्या पूछना चाहेगा ये पैराग्राफ पढ़ते हुए आपको हमेशा ध्यान रखना है ओपनिंग और क्लोजिंग पैराग्राफ पे बहुत ध्यान दीजिए बिकॉज मेन आइडिया हमेशा वहीं छुपा होता है 99% केसेस में मेन आइडिया फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ में होगा 1% exception can always be there. Also, constantly question yourself while reading the passage कि ऑथर ने ये क्यों लिखा है उसके माइंड में क्या चल रहा था क्या थॉट प्रोसेस था वो क्या कहना चाहता है हमेशा ऑथर के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे सो आरसीज विल बी अ केक वॉक फॉर यू बैरियर्स इन स्पीड रीडिंग vocalization is the worst thing you can do. अगर आप बोल बोल के पढ़ते हैं या मेंटली हर वर्ड बोलते हैं तो आप बहुत स्लो डाउन हो जाते हैं. द नेक्स्ट बिग बैरियर इज ऑक्यूलर स्लेविंग और फिक्सेशन. फिक्सेशन मतलब आपकी आईज एक ही वर्ड पे स्टिक करती हैं या एक एक अल्फाबेट देखती हैं वर्ड बनाते हुए आप आगे बढ़ते हो तो वो कभी हेल्प नहीं करेगा वो हमेशा आपको स्लो डाउन करेगा आपकी अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेंट्रेशन पे
नेगेटिव इफेक्ट डालेगा, इट विल वियर यू आउट। आप जल्दी थक जाएंगे, आपकी आंखें थक जाएंगी, आप बोर हो जाएंगे, आप इंटरेस्ट लूज कर देंगे। तो ये दोनों गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अब आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं अपनी रीडिंग स्किल, वो देखते हैं। स्पीड रीडिंग कैसे कर सकते हैं? यू कैन माइंड मैप, यू कैन मेक फ्लो चार्ट्स इन योर हेड, यू कैन मेक लिंकेजेस, इम्प्रूव मेमोरी। ऑफ कोर्स व्हेन यू रीड समथिंग ट्राई एंड रिकॉल इट, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइए। ये कैसे कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और बहुत ज़्यादा रीडिंग करेंगे आप, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और थोड़े टाइम में आप स्पीड रीडिंग सीख जाएंगे। ट्रस्ट मी, यू विल गेट बेटर विद प्रैक्टिस। कन्वेंशनल स्पीड रीडिंग कैसे होता है? रन योर फिंगर और योर पेन और योर पेंसिल अक्रॉस द लाइन व्हेन यू डू इट लाइक दिस। मतलब पेंसिल से आपको या पेन से अंडरलाइन नहीं करना है, बट जस्ट रन थ्रू, और उसके साथ साथ अपनी आंखें चलाइए, तो आप जोन में रहेंगे। जब आप जोन में रहते हैं आप कंसंट्रेशन लूज नहीं करते और आप लॉस्ट नहीं होते। एंड ऑफ पैराग्राफ में आपको फील नहीं होगा कि मैंने पढ़ा क्या। ऑल्सो योर आईज शुड अब्जॉर्ब एंटायर सेक्शंस। आप एक एक वर्ड पढ़ेंगे तो कभी भी समझ नहीं आएगा। अपना होराइजन, अपने पर्सपेक्टिव को वाइडन कीजिए और कोशिश करें कि कम से कम 5-6 वर्ड्स एक साथ पढ़ें, ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आए। कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आएगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा चीज़ों का मीनिंग जानना, क्योंकि कई बार आपको इंडिविजुअल वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता होता, बट कॉन्टेक्स्ट से और आसपास के सेंटेंसेस से आपको समझ आने लगता है। कीवर्ड्स जंप आउट होके सामने दिखाई देने लगेंगे, बट ये प्रैक्टिस के साथ ही पॉसिबल है। नाउ वी मूव टू द टोन्स ऑफ द पैसेज। टोन बेसिकली क्या होता है? तो ऑथर का सेंटिमेंट या एटीट्यूड, जो वो आर्टिकल लिख रहा है उस बारे में, उसे टोन कहते हैं। टोन्स बेसिकली मल्टीपल होती हैं। एक ही एसे में या एक ही आर्टिकल में बहुत सारी चीज़ों के बारे में ऑथर बात कर सकता है, बट एक प्रीडोमिनेंट इमोशन जो होता है, जो सामने दिख के आता है, वो टोन ऑफ द पैसेज होती है। टोन को आइडेंटिफाई करने के दो बहुत बड़े फायदे हैं। पहला, डायरेक्ट टोन बेस्ड क्वेश्चंस आप आंसर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द टोन ऑफ दिस पैसेज? ऐसे सीधा ही क्वेश्चन होता है एकदम, वो तो आप बिल्कुल आंसर कर सकते हो। उसके अलावा एक्सप्लिसिट चीजें जो नहीं दी हुई, जो बिल्कुल सामने आपकी आंखों के नहीं लिखा, वो इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाती है जब आपको मूड पता है ऑथर का। आपको जब टोन पता लग गई कि वो किस लहजे में बात कर रहा है, तो जो इम्प्लिसिट इन्फॉर्मेशन है, जो दिख नहीं रही, जो लाइंस के बीच में है, या इन्फरेंसेस हैं या कंक्लूजन्स हैं, जो सामने चीज़ें नहीं है, वो बहुत साफ साफ दिखने लगती हैं। टोन्स के अभी कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे हम। असर्बिक, हार्श, सिवियर एटसेट्रा जो होती है वो डिसएग्रीमेंट रिलेटेड टोन्स होती हैं। एंग्री, नाम से पता चल रहा है, एंग्री या इंडिग्नेंट जो होती है वो बायस के अगेंस्ट या सिस्टम के अगेंस्ट वेंट आउट जब करता है कोई ऑथर, तो वो इस टोन में लिखता है। अपोलोजेटिक मतलब वो अपॉलोजी या सॉरी या रिमोर्सफुल या गिल्टी फील कर रहा है और उस हिसाब से उसने आर्टिकल लिखा है। बेलिजरेंट या बेलिकोस जो टोन होती है, उसमें द स्टाइल ऑफ द ऑथर इज स्टाइल एंड अग्रेसिव राइटिंग। अनदर वन इज बायस्ड। बायस्ड में वो फेवर या डिसफेवर में किसी भी चीज की बात कर सकता है। द नेक्स्ट इज कॉन्डिसेंडिंग और पेट्रोनाइजिंग। कॉन्डिसेंडिंग मतलब किसी और को अपने से नीचा देखना, सो बेसिकली लुकिंग डाउन अपॉन समबडी, और पेट्रोनाइजिंग सुपीरियोरिटी of a particular kind, that is the condescending tone. Cynical is when the author feels that the society is, gone haywire, self interest से सब driven है, सब selfish हो गए हैं, तो वो cynical tone में बात करेगा. Dogmatic is the assertive or the teacher like tone. इमोशनल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, फीलिंग्स के बारे में बात करेगा जब वो। ग्रैंडियोज, नाम में ग्रैंड है, इट इज गोइंग टू बी वेरी एलैबोरेट, वेरी फ्लारी लैंग्वेज, एंड हर चीज की बहुत ज्यादा तारीफों के पुल बांधते हुए बातचीत करेगा वो। ह्यूमनिस्टिक, ह्यूमन वेलफेयर से या वैल्यूज से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल है, दैट इज इन द ह्यूमनिस्टिक टोन। ह्यूमरस, द फनी वन। इंट्रोस्पेक्टिव, सेल्फ एग्जामिनेशन है, अपने गिरेबान के अंदर झांकने वाली टोन में अगर बात करेगा देन। इंसेंडरी और प्रोवोकेटिव जो होता है वो इंसाइट करने के लिए होता है। यूजुअली जो आपके लीडर्स या पॉलिटिशियंस बात करते हैं वो इस टोन में बात करते हैं। लॉडेटरी इज टू प्रेज और कमेंड समबडी। पॉपुलिस्ट, जनरल पॉपुलेस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कोई बात हो। सार्कास्टिक जो होता है वो थोड़ा आयरॉनिकल और डार्क ह्यूमर बेस्ड होता है। स्पेक्यूलेटिव इज टू hypothesize things and to assume things. सो एक्सपर्ट ओपिनियंस के बारे में भी वो अगर फोकास्टिंग या इसे स्पेक्यूलेशन दे रहा है, या ये होगा या सजेस्टिव तरीके से बात कर रहा है, दोज आर स्पेक्यूलेटिव काइंड ऑफ आर्टिकल्स।
The different types of questions that are there in RCs, factual, the direct question of course. जो indirect questions होते हैं वो ये 3 categories है. So the main idea, title and inference, ये central theme पे और आपकी inference based questions होते हैं. In between the lines आपको read करना पड़ता है इनको समझने के लिए, तभी आप main idea, title या inference जान पाते हैं. Tone again is a direct question. You have to read the article to understand and deduce the tone and the mood of the author. The next is types of RCs. Very easy. You will find it everywhere, and whatever you read, you will be able to categorize them in these main 5 categories. पहला है social sciences, तो आपके history, geography, polity के जो articles हैं वो यहाँ से आते हैं. Inferential questions इस पे ज़्यादा based होते हैं. Editorials are a good source to know these things. Business and economics passages, again theories पे और events पे based हो सकते हैं. Terminology आपको आनी चाहिए, ये basic assumption होती है examiner की कि आप UPSC exam में बैठ रहे हैं, so you're well versed with economy and the legal jargon. Also your knowledge is very important, so Economic Times is a good source. The next is science based passages. ये आपके basic sciences पे like biology, chemistry, medicine, technology etc. पे based होंगे. Lot of facts and technical jargon are going to be there. It looks boring and may appear, tiring to you, but please don't get confused. It is only to test your patience. That's all. It is not going to be too difficult. The second last one, sorry, is philosophy, sociology, and psychology, which is the liberal arts. Very dense and very intense topics. Please don't assume out of the box. जो पैराग्राफ में नहीं लिखा है या अपनी प्रायर नॉलेज से कुछ चीज़ें assume मत करें. Overall understanding of the ideas presented is the keyword here, कि इस पे ध्यान दीजिए. बाहर से कोई भी information लाके अपने आप से assumptions लेके आपको नहीं solve करना है. The last one is latest political and current events based passages. Very easy to understand. Newspapers you guys are following thoroughly, I'm sure. तो उसमें से आपके direct और indirect यानी कि inferential kind of questions दोनों आते हैं. And newspapers are the best source to follow this, and any current affairs magazine. Thank you guys. In the next videos, we're going to be solving RCs and previous year questions of the UPSC. So if you really think this helped, please like, comment and share the video. Thank you so much.